Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to explain the lead code problem number 2402. 2402. Meeting rooms third, okay. You are given an integer and there are n rooms numbered from 0 to n minus 1, okay. You are given 2D integer array meetings where meetings of I is start I and end I means that a meeting will be held during the half closed time interval start I comma end I. All the values of start I are unique, okay. Meetings are allocated to rooms in the following manner, okay. Each meeting will take place in the unused room with the lowest number, okay. If there are no available rooms, the meeting will be delayed until a room becomes free. The delayed meeting should have the same duration as the original meeting, okay. When a room becomes unused, meeting that have an earlier original start time should be given to the room, okay. Return the number of rooms that held the most meetings. If there are multiple rooms, then return the lowest number, okay. Closed interval a comma b is the interval where a and b including where between a and b including a not including b, okay. So प्रॉब्लम हार्ड मार्क्ड है बट ये आपको मीडियम लगने लगेगा. इट गोइंग टू बी ईजी आफ्टर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन, ओके. So let's understand using the example, okay. Using this test case, okay. So this will be the test case. यहाँ पे n इक्वल टू 2 दिया गया, मतलब हमारे पास दो रूम है. तो दो रूम है, एक रूम हमारा ये 0 वाला हो गया, 0th रूम, एंड अनदर इज फर्स्ट रूम, ओके. एंड सबसे पहले क्या आ गया, हमारी मीटिंग आ गई, ठीक है. मीटिंग में जो स्टार्ट वैल्यू है वो हमारी यूनिक है, ठीक है. ये क्वेश्चन में बोल रखा है स्टार्ट है यूनिक वैल्यू हमारी. तो सबसे पहले हम इस वाले पे आते हैं, इस मीटिंग पे आते हैं, फर्स्ट मीटिंग पे. ये मीटिंग आई हमारी 0 टाइम पे, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये हमारी मीटिंग आई, ठीक है. एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हम देखेंगे कौन से एम्प्टी रूम हैं. तो वी सी दैट 0, 1 बोथ आर एम्प्टी, but we have to assign this meeting in the room which have lowest number, okay, which have lowest number. So 0 have the lowest number, okay. So we will assign this first meeting to the 0th room, okay. तो ये 0th रूम पे पास असाइन कर देंगे हम इसको, ठीक है. now we are on this meeting. Now this meeting will be start time of time t equals to 1, okay. And time t equals to 1, we see that there is only one empty room is available, okay. This room is occupied, okay, and this room is available. So we will assign this room to we will assign this meeting to this room, okay. Now we will move to further. Now at time t equals to 2, there are no rooms available for this meeting, okay. You can see here 0 is assigned to this first meeting and 1 is assigned to the second meeting. And at time t equals to 2, there are no room available for this meeting, okay. So this meeting will be delayed, okay. इसको वेट करना पड़ेगा इस मीटिंग को. Now after t equals to 5, we will see that ये जो मीटिंग है, ये जो फर्स्ट मीटिंग है वो t इक्वल्स टू 10 पे हमारी रूम को फ्री करेगी. बट द सेकेंड मीटिंग एट टाइम t इक्वल्स टू 5 पर ये फ्री कर देगी 1 वाले रूम को, ठीक है. तो फर्स्ट रूम को ये फ्री कर देगी एट टाइम t इक्वल्स टू 5 पर. एंड फिर देन टाइम t इक्वल्स टू 5 पर ये हमारी मीटिंग जाएगी, किसको असाइन होगी, रूम 1 को, ठीक है. रूम 1 को ये मीटिंग हमारी असाइन हो जाएगी एट टाइम t इक्वल्स टू 5 पर. एंड दिस मीटिंग जब ये असाइन होगी एट टाइम t इक्वल्स टू 5 पर, तो ये फ्री कब होगी, 5 प्लस 5 10 पर फ्री हो जाएगी ये मीटिंग. क्यों, इसका ड्यूरेशन देखिए, लुक हियर, ये देखिए एट टाइम t इक्वल्स टू 5 पर इट विल बी असाइन टू द रूम फॉर 1. एंड ये कब तक ही चलेगी, ड्यूरेशन इसका क्या है, ड्यूरेशन इज 5. सो एट टाइम t इक्वल्स टू 10 तक की ये चलेगी, ये एंड टाइम है इसका, ठीक है, ओके. एंड नाउ वी विल मूव टू द अनदर मीटिंग. सो हियर वी विल स्टोर द काउंट. 0 मीटिंग इज स्टिल ऑक्यूपाइड, ओके, एंड काउंट इज 1. इसमें अभी एक मीटिंग चल रही है. एंड फर्स्ट वन रूम में 2 मीटिंग ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, इसमें सेकेंड मीटिंग अभी रनिंग है, ठीक है, ओके.
Now we will move to the last meeting, that is 3,4. Now this meeting is running start on time t equal to 3, but now all the rooms are occupied, but at time t equals to 10, okay, t equals to 3 पे तो ये फ्री नहीं होगा. एट टाइम t equals to 10 पर हमारे जो 0,10 है एंड 2,7 ये दोनों मीटिंग हमारी रूम को फ्री कर देंगे. ये देखिए t equals to 10 पे हमारी ये फ्री होगी और ये भी t equals to 10 पे फ्री होगी, तो ये दोनों मीटिंग हमारी फ्री हो जाएंगी, सॉरी रूम हमारे फ्री हो जाएंगे. 0 भी फ्री हो जाएगा एंड 1 भी हमारा फ्री हो जाएगा. सो वी विल असाइन दिस लास्ट मीटिंग टू द लोएस्ट नंबर रूम. ओके, लोएस्ट नंबर रूम हमारा कौन है, 0 है. ओके, सो वी विल असाइन दिस लास्ट मीटिंग टू दिस 0th रूम. ओके, यहाँ पर इसको असाइन कर देंगे, तो ये हमारी कितनी जाएगी, ये इसका भी काउंट हमारा 2 हो जाएगा. नाउ वी हैव टू रिटर्न द room that held the most meeting. Okay, but here most meeting held by both room. Okay, so we return the lowest number room. Okay, and lowest number room is 0th room, so here the answer is 0. Okay, so for in this case the answer is 0. Okay, now we will move to the अप्रोच. ओके, अप्रोच पर देखते हैं कैसे इसका, इंट्यूशन पे देखते हैं कैसे इसको हम अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, सो लुक हेयर वी हैव दिस एग्जाम्पल. ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल है, 0 है, 1 2 3. एक बिगिनर के दिमाग में कैसे आएगा ये सोल्यूशन. ठीक है, देखते हैं. वो सबसे पहले क्या देखिए, अच्छा 0,10 आया है. ठीक है, 0,10 आया है. ठीक है, 0,10 को हम दे देंगे जो भी एम्प्टी रूम होगा, फिर 1,5 आएगा उसको भी दे देंगे. सो ऐसे करेंगे. ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखेंगे पहले, अगर यहाँ पर 0,10 है, ठीक है, इससे पहले 1,5 आता अगर और फिर 0,10 आता तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है. मीन्स 1,5 आया, फिर टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारा टाइम t इक्वल टू, तो हमें सबसे पहले मीटिंग को ऑर्डर वाइज करना होगा. स्टार्ट मीटिंग को मतलब जो स्टार्टिंग टाइम है उसको ऑर्डर वाइज करना होगा. सबसे पहले टाइम इक्वल टू 0 वाली मीटिंग होगी, फिर टाइम इक्वल टू 1 वाली मीटिंग होगी. सो वी हैव टू सॉर्ट दिस मीटिंग एरे ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट टाइम. ओके, वी हैव टू सॉर्ट दिस. ये एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी मीटिंग टाइप या इंटरवल टाइप जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें सॉर्ट पहले करके देखिएगा. सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट टाइम, मतलब स्टार्ट टाइम पे या फिर एंड टाइम पे. बट यहाँ पर स्टार्ट टाइम जो कि यूनिक है तो हम स्टार्ट टाइम पे सॉर्ट कर देंगे. ठीक है, स्टार्ट टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट टाइम वी हैव टू सॉर्ट दिस मीटिंग. ओके, स्टार्ट टाइम सॉर्ट कर देंगे. ये ऑलरेडी सॉर्ट है तो हमें इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट मीटिंग. ओके, फर्स्ट मीटिंग इज 0,10. ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम t इक्वल्स टू 0. क्या है, टाइम t इक्वल्स टू 0. ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हम कौन सी मीटिंग असाइन करेंगे, मीटिंग वी विल असाइन द मीटिंग 0,10. ओके, 0,10 हम असाइन कर देंगे. और किस रूम को असाइन करेंगे, रूम नंबर 0. क्योंकि 0 भी हमारा फ्री रूम है ना, 0 एम्प्टी रूम है, तो और एम्प्टी रूम हमारे 0 और 1 दोनों है, तो वी विल असाइन टू द लोएस्ट नंबर. ओके, लोएस्ट नंबर रूम को हम असाइन करेंगे. ओके, एंड यहाँ पर एक और ये एम्प्टी रूम मैंने बना रखा है. ठीक है, इसको यहाँ पर स्टोर कर देंगे. 0,1 अभी हमारे एम्प्टी थे, बट नाउ 0 इज filled by occupied by 0,10 meeting. Now 1 is empty room. Okay, now we will move to the another meeting, that is 1,5. Now we look here that is there any empty meeting? Yes, there is empty meeting of room number 1. Sorry, empty room is room number 1. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइन कर देंगे. एट टाइम t इक्वल्स टू 1 पे टाइम 2 इक्वल्स टू 1 पे हमारा क्या होगा, 0,1,5 हम असाइन कर देंगे. ठीक है, इसको मैं कॉपी करके देती हूँ, 1 मिनट. कंट्रोल प्लस बी. ओके, एंड यहाँ पर मैं कर दूँगी 1. ओके, एंड यहाँ पर यहाँ पर मेरी मीटिंग कौन सी जाएगी, 1,5. ओके, 1,5. एंड यहाँ पर मेरी आ जाएगी रूम नंबर 1. ओके,
रूम नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, रूम नंबर 1 आ गया, ठीक है। रूम नंबर 1 भी हमारा ऑक्यूपाइड हो गया, ठीक है। अब हम आगे मीटिंग में जाएंगे 2,7। नाउ 2,7 बोले कि मैं t=2 पर स्टार्ट होंगी। नाउ ईयर टाइम t=2 आ गया हमारा, ठीक है। बट एट टाइम t=2 देयर आर नो मीटिंग, देयर आर नो रूम्स अवेलेबल, ओके। कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, दोनों ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, ठीक है। सो वी हैव टू वेट फॉर टाइम t=5 बिकॉज दिस मीटिंग विल बी फिनिश्ड अर्लीस्ट, ओके। ये मीटिंग है, ये पहले फिनिश होगी अकॉर्डिंग टू एज कम्पेयर टू दिस 0,10 मीटिंग, ओके। ये वाली मीटिंग हमारी सबसे पहले ख़त्म होगी, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 वाली मीटिंग है, सॉरी, इसका जो एंड टाइम है ये सबसे पहले में ख़त्म होगी ना 5 पे, एट टाइम t=5 पे हमारी ख़त्म होगी ये वाली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एट टाइम t=5 तक की हम जाएंगे, ठीक है। 3 तक की वेट किया, 4 तक की वेट किया, 5। सो हम क्या कहाँ पे आ गए, एट टाइम t=5 पर, ठीक है। एट टाइम t=5 पर, मिनट इसको कॉपी करो पहले, ठीक है। टाइम t=5 पर हमारी कौन सी मीटिंग फ्री हो, कौन सा रूम फ्री होगा, रूम नंबर 1, ओके। इंक्रीज करो तो 5 पर, ठीक है। 5 पर हमारा रूम नंबर 1 फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 1 असाइन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। रूम नंबर 1 और यहाँ पे मीटिंग कौन सी होगी हमारी, मीटिंग है हमारी 2,7। बट एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर जो इसका स्टार्ट टाइम होगा वो अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मीटिंग स्टार्ट होनी थी 2 बजे, ठीक है। लेट सपोज ये मीटिंग, मतलब लेट सपोज करिए इसमें टाइम दिया गया 2 बजे, ठीक है। 2 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन नहीं स्टार्ट हो पाई, क्यों, क्योंकि डिले हो गया, क्योंकि कोई रूम अवेलेबल ही नहीं था। सो ये इस मीटिंग को डिले करना पड़ा, ठीक है। अब डिले करने बाद तो ये कब स्टार्ट हुई हमारी 5 o'clock पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 स्टोर कर देंगे। अब आगे देखिए, हमने 5 पर इसको चला दिया, लेकिन ये कब तक की चलेगी, कब तक की चलेगी, इसका ड्यूरेशन देखिए, यहाँ पर इसका ड्यूरेशन कितना है 2,7 इसका ड्यूरेशन कितना है 5, 7 - 2 5 हो गया ना, इसका ड्यूरेशन 5 तक की चलनी थी ना। तो अब ये स्टार्ट हमारी 5 पे हुई है और चलना इसको 5 तक की, तो 5 + 5 10, यानी एंड टाइम इसका क्या हो गया 10। ये हमारा यहाँ पर अपडेशन होगा, ठीक है, अपडेट हो किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। आगे हमारी कौन सी मीटिंग है, आगे है हमारी 3,4, कौन सी है 3,4, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूँगा, 3,4 है, ठीक है। अभी हमारा कोई भी रूम अवेलेबल है नहीं भाई, कोई रूम अवेलेबल नहीं है, तो इसको वेट करना पड़ेगा। ये t=3 पे इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे टाइम t=3 जो आया होगा इसको भी वेट करना पड़ा होगा, क्योंकि उसके पास भी कोई रूम एम्प्टी नहीं है, ठीक है। टाइम t=3 पे हमारी कौन सी मीटिंग आई है 3,4। 3,4 को भी क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, एंड 2,7 को भी वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ा था, ठीक है। वेट, इसको भी वेट करना पड़ेगा, W मैं लिख रही हूँ, मतलब वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को वेट करना पड़ा, ठीक है। एंड जब टाइम t=5 हो गया, तब हमने देखा सबसे पहले मीटिंग हमारी कौन सी थी 2,7, तो 2,7 को मैंने असाइन कर दी, 2,7 को मैंने असाइन कर दिया रूम नंबर 1, ठीक है। रूम नंबर 1 असाइन कर दिया, तो ये टाइम t=5 पर चलेगी और टाइम t=10 पर ये फ्री हो जाएगी। अब हम देखेंगे अपने मीटिंग वाले एरे में, टाइम t=10 पे हमारी 2 मीटिंग हैं जो रूम नंबर 0,1 को फ्री कर रहे हैं एट टाइम t=10 पे। दोनों मीटिंग सेम टाइम पे रूम को फ्री कर रहे हैं, तो हमारा दोनों रूम फ्री हो जाएंगे, कौन से 0 और 1 दोनों रूम हमारे फ्री हो जाएंगे एट टाइम t=10 पे। तो हमें वेट करना पड़ेगा एट टाइम t=10 तक की। तो जब हमारा टाइम कितना जाएगा 10, ओके। ये हमारा टाइम t=10 हो गया, ठीक है। और टाइम t=10 पे हमारे 2 रूम फ्री हो जाएंगे। तो अब हमारी जो डिलेड मीटिंग है 3,4, तो 3,4 अब हमारी किस टाइम पे स्टार्ट होगी, देखिए टाइम t=10 पे हमारा रूम फ्री हुआ है, तो हम फ्री रूम लिख देंगे, पहले
मतलब टाइम टी इक्वल टू 10 लिख देंगे जिस टाइम पे ये मीटिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड इसका ड्यूरेशन कब तक चलेगी, 4,3 मतलब 1 तक की, सिर्फ टाइम टी इक्वल टू 1 तक की चलेगी। ड्यूरेशन इसका कितना है, 1, ड्यूरेशन 1 है, ठीक है। 1 ड्यूरेशन है और टाइम टी इक्वल टू 10 पे स्टार्ट हुई है, तो कितना एंड टाइम होगा इसका, 11। ओके, 11 इसका क्या हुआ, एंड टाइम। और इसको मैंने कौन सा रूम असाइन करेंगे, अब देखिए रूम इसको कौन सा असाइन करेंगे, दोनों रूम फ्री हैं, बट वी हैव टू असाइन दैट रूम विच हैव लोएस्ट नंबर, और लोएस्ट नंबर किसको है, 0, ठीक है। तो 0 रूम इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे फ्रिक्वेंसी, जो 0 रूम है, जो हमारा 0th रूम है, द 0th रूम है 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स हमारा असाइन हुआ है। एंड फर्स्ट रूम है उसको भी 2 बार मीटिंग असाइन हुई है, ठीक है। दोनों को 2 बार असाइन हुई है मीटिंग, तो हम कौन सा चेक करेंगे, कौन सा लेंगे, सो वी हैव टू टेक दैट वन विच हैव लोएस्ट रूम नंबर। ओके, सो हम कौन सा लेंगे, 0th वाला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, 0, ठीक है। ये मैंने अभी एक टाइप का आपको एक टाइप की स्टार्टिंग अप्रोच बताया कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, चेक करेंगे क्या 0 to 10 के चेक करेंगे क्या रूम एम्प्टी है, ठीक है, हम असाइन कर देंगे। फिर हम 1,5 के लिए रूम एम्प्टी, ठीक है, हमने असाइन कर दिया। फिर हम आएंगे 2,7 पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करें, ठीक है। 2,7 आया, ठीक है। अब 2,7 के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट हम कब तक करेंगे, जब तक हमें कोई एम्प्टी रूम मिल नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एम्प्टी रूम तो हम कैसे निकालेंगे, कब तक की वेट करना पड़ेगा, एम्प्टी रूम तो है नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टोर करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टोर किया है ना, तो हमें तो स्टोर करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो स्टोर तो करना पड़ेगा, कहाँ पर स्टोर करें, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लें, हम कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लें, कहाँ पर स्टोर करें, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी तो, ठीक है। तो हम क्या करें, हमें यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमें जो ऐसा मीटिंग चेक करनी है जो जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है, ऐसी मीटिंग हमें चेक करनी है। तो ऐसी मीटिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मीटिंग का स्टार्ट टाइम स्टोर करने से तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, क्योंकि हम हमेशा इसका एंड टाइम ही चेक कर रहे हैं, एंड टाइम पे ही हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। तो स्टार्ट टाइम से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक और हम, अब डाटा स्ट्रक्चर मैंने नाम नहीं बताया, अभी मैं नाम भी नहीं बताऊँगी, मैं बस यहाँ पर बता रही हूँ कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर एंड टाइम स्टोर कर लेंगे, किसका, जो भी मीटिंग हमने असाइन कर दी है रूम्स को, उनका एंड टाइम हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। किसका एंड टाइम स्टोर करेंगे, जो मीटिंग असाइन कर दी है रूम्स को, उनका एंड टाइम हम यहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एंड टाइम स्टोर करेंगे, और रूम्स जो है हमारा, जिस रूम से मैंने असाइन किए वो रूम हम यहाँ पर लिख देंगे, जिस रूम में मैंने वो मीटिंग असाइन की है वो रूम यहाँ पर लिख देंगे। सो हमें पता चल सके ना कि कौन सा रूम को असाइन कर दी है हमने मीटिंग, ठीक है। और हम स्टोर कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट मीटिंग हमारी 10 था, उसका एंड टाइम, और जो सेकेंड मीटिंग थी उसका एंड टाइम 5 था, ठीक है। और रूम नंबर हमने 0,1 असाइन किए थे। लेकिन जब हम वेटिंग पे आए तो हमने चेक किया हमें कौन सा मीटिंग चाहिए, कौन सा मीटिंग मतलब कितनी जल्दी रूम को फ्री कर देगा, कौन सा मीटिंग कितनी जल्दी रूम को फ्री कर देगा, ठीक है। तो ये वाले जो एंड टाइम है 5, ये जल्दी से मीटिंग को फ्री कर देगा। तो हमें अर्लीस्ट टाइम देखना है, एंड टाइम कौन सा लेना है, अर्लीस्ट एंड टाइम। अर्लीस्ट एंड टाइम मतलब हमें शॉर्टेस्ट एंड टाइम देखना है, जो जितनी जल्दी मीटिंग को ख़त्म कर दे, क्योंकि हमें डिले ज़्यादा थोड़ा ना करना है, डिलेट हमें इतना थोड़ा डिले करना है, ठीक है, कि हम एंड टाइम 10 तक की हम वेट करें, नहीं। हमें कोई सा भी रूम मिल जाए, बट वो अर्लीस्ट एंड टाइम जल्दी से जो मीटिंग हमें दे दे वो रूम हमें मिल जाए, ठीक है, कोई सा भी रूम मिल जाए। तो ये एंड टाइम 5। तो हम ये कैसे निकालेंगे कि जो हमें एंड टाइम है वो अर्लीस्ट मिल जाए, लेसर एंड टाइम मिल जाए, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो तो भाई हमारा मिनी हिप में होता है ना। मिनी हिप तो यही काम करता है ना, मिनी हिप क्या करता है, मिनी हिप हमें जो मिनिमम टाइम है, ठीक है, जो मिनिमम टाइम है, जो शॉर्टेस्ट टाइम है, शॉर्टेस्ट कह रही हूँ मैं, जो अर्लीस्ट टाइम है, ठीक है, मिनिमम टाइम है, वो हमें दे देगा ओ ऑफ log n में, ठीक है, ओ ऑफ log n में दे देगा हमको। किस में दे देगा, ओ ऑफ log n में दे देगा हमको, ठीक है, जो मिन हीप है। तो एंड टाइम हम मिन हीप में स्टोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें एंड टाइम मिन हीप में तो स्टोर कर रहे हैं, उसके साथ भी हमें रूम को भी इसका स्टोर करना है कि कौन सा रूम नंबर इस मीटिंग को असाइन हुआ था, ठीक है। इस मीटिंग के रिस्पेक्टिंग में
रेस्पेक्टिंग में कौन सा रूम नंबर असाइन हुआ, तो वो भी हमें स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पेयर स्टोर कर सकते हैं। क्या स्टोर कर सकते हैं इसका, पेयर ऑफ एंड रूम, एंड टाइम एंड रूम, पेयर ऑफ एंड टाइम एंड रूम स्टोर कर सकते हैं किसमें, मिन हीप में। और मिन हीप किस बेसिस पे हमें देगी शॉर्टेस्ट टाइम, किस बेसिस पे हमें रूम देगी, ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ अर्लीस्ट टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम टाइम। ओके, मिनिमम टाइम के बेसिस पे हमें ये क्या दे देगी, रूम दे देगी। ठीक है, ये जितनी जल्दी फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक हमने ठीक देख लिया कि ये हमें ये हमने देख लिया कि हमें केस में स्टोर करना है, मिन हीप में हमने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये भी तो चेक कर रहे हैं, जब हमें सबसे पहले हमें चेक करना है कि कोई एम्प्टी रूम है कि नहीं है, ये तो चेक करना है। सबसे पहले एम्प्टी रूम से ही तो लेना है। तो एम्प्टी रूम भी हमें क्या दे रहा है, लोएस्ट टाइम दे रहा है, सॉरी लोएस्ट टाइम करिए, लोएस्ट रूम नंबर दे रहा है, क्योंकि लोएस्ट रूम नंबर को पहले असाइन करनी है मीटिंग। तो ये कैसे निकलेगा, लोएस्ट रूम नंबर हमें पहले निकालना है, तो ये भी मिन हीप से निकाल लेंगे ना, इसमें भी क्या दिक्कत है, इसको भी मिन हीप से निकाल लेंगे, मिन हीप से बना लेंगे। इसको भी हम मिन हीप से बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते हैं। मिन हीप लगा देंगे, मिन हीप में स्टोर कर लेंगे और मिन हीप हमें देती जाएगी, क्या कर देता जाएगा, मिन हीप हमें देता जाएगा लोएस्ट रूम नंबर सबसे पहले, क्यों नहीं दे देगा ना, मिन हीप सबसे पहले लोएस्ट रूम नंबर दे देगा ना। तो ठीक है, हमारे पास दो डाटा सेक्शन हमें स्टोर करना है। ठीक है, दोनों मिन हीप ही हैं, एक मिन हीप में हमें एम्प्टी रूम स्टोर करना है और एक मिन हीप में हमें पेयर ऑफ एंड टाइम एंड रूम स्टोर करना है। ठीक है, ठीक है, एंड हमें एक चीज़ और काउंट करनी है, जो मेन चीज़ जो रिटर्न करनी है कि कितने रूम्स कितनी बार यूज्ड हुए हैं। ठीक है, मतलब कौन सा रूम कितनी बार यूज्ड हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे, एरे बना लेंगे रूम नंबर का, जितने भी रूम्स दिएंगे उतने साइज़ का एरे बना लेंगे। यहाँ पर कितने रूम है, यहाँ पर सिर्फ हमारे 2 रूम है। ठीक है, तो हम दो साइज़ का हम रूम बना लेंगे एंड जितनी बार जब हम यूज़ करेंगे उस रूम को, उस रूम के काउंट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो 0 से यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 से 1 हो जाएगा जब हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ कर देंगे, यहाँ से 1 पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे रूम को, वैसे वैसे अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या समझे, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो हमें मीटिंग वाले एरे पे आइटरेट करना ही है। ठीक है, आइटरेट करेंगे। ठीक है, 0 वाले पे आइटरेट किया, 1 वाले पे आइटरेट किया, 2 वाले पे आइटरेट किया, 3 वाले पे आइटरेट किया। ठीक है, ऐसे मीटिंग पे आइटरेट करेंगे और जो मीटिंग सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे कि क्या कोई एम्प्टी रूम है, फ्री रूम, एक हम मिन हीप बनाएंगे, उसमें चेक करेंगे क्या कोई एम्प्टी रूम है, सबसे पहले असाइन करते हैं। अगर नहीं है तो हम वेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस मिन हीप से ये जो एंड टाइम और रूम का पेयर स्टोर है, इसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट है, जो सबसे अर्लीस्ट मीटिंग है जो एंड होगी, उसका हम रूम नंबर निकालेंगे और वो हम असाइन कर देंगे अपने इसमें। ठीक है, उसका क्या करेंगे, न्यू स्टार्टिंग टाइम निकाल लेंगे, न्यू एंड टाइम निकालेंगे। न्यू एंड टाइम हमारा कैसे आएगा, ड्यूरेशन से आ जाएगा, स्टार्ट टाइम हमारा वो हो जाएगा जो हमारी मीटिंग एंड हुई है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। चलिए इससे सबसे पहले इतना से हम करके देखते हैं कि हमारी कहीं और दिक्कत आती है कि नहीं आती। ठीक है, इतना हम करके देखते हैं। ठीक है, मैं इतना करके दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले ये हटाओ। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, यहाँ पर एरेज डॉट सॉर्ट से मैंने मीटिंग स्टोर एरे मतलब स्टार्ट टाइम के बेसिस मैंने सॉर्ट कर ली। फिर मैंने एक फ्री रूम बताया था ना, जो एम्प्टी रूम है, ठीक है, उनको मैंने स्टोर कर लिया मिन हीप में। ठीक है, और मिन हीप में स्टोर कर लिया, और जो भी फ्री रूम्स है, अभी स्टार्टिंग में सारे रूम्स फ्री होंगे, तो मैं सारे रूम्स एक फ्री रूम वाले मिन हीप में मैंने स्टोर कर दिए। ठीक है, और जो जितने भी हमने जो भी रूम यूज होते जाएंगे उनका काउंट भी हमें स्टोर करना है, तो हमने काउंट भी स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या, जो हमने बताया था ना यहाँ पर, मैंने बताया था ना यहाँ पर, जो रूम एंड टाइम एंड रूम को हमें पेयर में स्टोर करना है, किसमें, मिन हीप में। ठीक है, मिन हीप में स्टोर करना है, किसमें, एंड टाइम एंड पेयर्स को। ठीक है, मैं बना लूँगी यहाँ पे वेयर यूज्ड रूम एंड टाइम। ओके, यूज रूम एंड टाइम। ठीक है, हम स्टोर कर लेंगे न्यू प्रायोरिटी क्यू, और यहाँ पर क्या हम पेयर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो पेयर बना लेंगे। एंड एक चीज़ और स्टोर करना है, क्या हमें बनाना है, यहाँ पर कंपेरेटर पास करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है हमें। अगर
अगर दोनों के एंड टाइम, अगर एक चीज़ आएगी यहाँ पर, ठीक है। आइए मैं एक आपको एक ऐसा हमारे पास टेस्ट केस हो सकता है जहाँ पर एंड टाइम सेम है, ठीक है। जहाँ पर एंड टाइम सेम है, लाइक मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको कैसे एंड टाइम। जैसे यहाँ पर भी मेरी जो एंड टाइम है वो 10 है, ठीक है, 10 है, और यहाँ पर भी जो एंड टाइम है वो भी 10 है, ठीक है। एंड जो रूम नंबर है इसका 0 है, इसका 1 है। तो हमें कौन सा रूम नंबर सबसे पहले चाहिए? जो लोएस्ट रूम नंबर हो, जिसका लोएस्ट रूम नंबर हो, ठीक है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर जो एंड टाइम है वो सेम है तो हमें किस के बेसिस पे सॉर्ट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ रूम नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए कॉमा वी कैसे करेंगे हम? कंपैरेटर पास करेंगे, कंपैरेटर इफ़ ए ऑफ 0 माइनस ए ऑफ 0 इक्वल्स टू वी ऑफ 0 अगर सेम है तो हमें किसके बेसिस पे सॉल्व करना है? रूम नंबर के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ए ऑफ 1 माइनस वी ऑफ 1, ठीक है। एल्स क्या हमें रिटर्न करना है, किसके बेसिस पे सॉल्व करना है? ए ऑफ 0 माइनस वी ऑफ 0, मतलब एंड टाइम के बेसिस पे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, ये स्टोर कर रही हूँ मैं हीप में, ठीक है, मेन हीप में, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हम एक मीटिंग वाले एरे पे चलेंगे, ठीक है। मीटिंग वाले एरे पे हम आइटरेट करेंगे, ठीक है। हमने मीटिंग निकाल ली, मीटिंग का स्टार्ट टाइम निकाल लिया, मीटिंग का एंड टाइम निकाल लिया, मीटिंग का ड्यूरेशन टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या कोई फ्री रूम है। इज एनी फ्री रूम अवेलेबल इन फ्री रूम्स, ठीक है। हम फ्री रूम्स को जो मैंने मिनी हीप बनाई थी उसमें मैं चेक करूँगी, इस हीप में चेक करूँगी कि क्या कोई फ्री रूम अवेलेबल है। अगर ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो यानी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला पॉल कर लेंगे, ठीक है, पॉप कर लेंगे रूम, और उसको रूम यूज्ड काउंट के एरे को हम इंक्रीज़ कर देंगे। जिस रूम को यूज़ किया उसके काउंट को, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है। वो रूम कितनी बार यूज हो चुका है, ठीक है। एंड यूज्ड एंड रूम्स, ये जो हमने बनाया है जिसमें हमने एंड टाइम में पेयर स्टोर किए हैं, उसमें मैं स्टोर कर दूंगी इसको, ठीक है। क्या करूँगी, ऐड क्या कर देंगे हम इसको पहले, जो हमने जो मेरा एंड टाइम है, ठीक है, इस मीटिंग का वो स्टोर करना है हमको, एंड जिस रूम नंबर को मैंने यूज़ किया है वो स्टोर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अगर मुझे फ्री रूम कोई नहीं मिला तो मुझे किस में चेक करना है? अगर मुझे फ्री रूम कोई नहीं मिला फिर मैं क्या करूँगी, इस जो हमारा जो ये हीप है, ये जो मेन हीप बनाया था मैंने जिसमें एंड रूम स्टोर किए थे, इसका जो अर्लीस्ट एंड टाइम होगा जिस मीटिंग का, उस मीटिंग को हमें निकाल देना, उस मीटिंग को हमें हटा देना इस रूम से, क्योंकि वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी एंड हमें फ्री जो रूम फ्री होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेक अर्लीस्ट रूम फ्रॉम यूज्ड रूम, ओके। फ्रॉम यूज्ड रूम से हमें क्या लेना, अर्लीस्ट रूम लेना है, जो मीटिंग अर्लीस्ट मीटिंग, ठीक है, अर्लीस्ट मीटिंग दैट विल फ्री द रूम, ओके। तो हम क्या करेंगे, इफ़ सबसे पहले कैसे करेंगे, ये हमारी खाली तो नहीं, ये तो मुझे चेक ही करना है। सबसे पहले जो हमारे यूज रूम है वो एम्प्टी तो नहीं है, ये चेक पहले लगा लेना है हमको। यार क्या है यहाँ पर, डॉट इज एम्प्टी, ओके, ठीक है। एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस रूम के एरे को जो एंड टाइम है, एंड टाइम और इस रूम है, इसको हम इस पेयर को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इस पेयर को बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज्ड, एक मिनट, यूज नहीं, एंड टाइम एंड रूम, ठीक है। एंड टाइम रूम का ही हमने पेयर बनाया ना, तो वो निकाल लेंगे हम किससे, इस यूज्ड रूम एंड टाइम से, डॉट पॉल, ठीक है, पॉल कर लेंगे हम इसको। फिर हम क्या निकाल लेंगे, इंट रूम निकाल लेंगे, जो हमारा रूम है वो हमारा एंड टाइम रूम के जो हमारा 1 पोजीशन पे, उस पर हमारा रूम है, और जो फर्स्ट पे हमने स्टोर किया एंड टाइम स्टोर किया, ठीक है, एंड टाइम,
इक्वल्स टू एंड टाइम रूम, ठीक है, 0 पे स्टोर किया। अब हम क्या कर देंगे, इसके काउंट को बढ़ा देंगे रूम को। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टोर कर देंगे। हम किस में स्टोर करेंगे इसको, क्योंकि हमने यूज़ कर लिया ना। लेकिन जब हमें फ्री रूम में नहीं मिल रहा था तो हमें क्या इसमें स्टोर करना पड़ रहा था, मतलब किससे लेना पड़ रहा था, यूज रूम एंड टाइम से। तो जब हम इससे ले रहे थे तो हमने रूम को ले लिया, रूम में मिल गया, ठीक है। जब हमको रूम मिल गया फिर हमें इसका जो न्यू एंड टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा ना। मैंने बताया था ना, न्यू एंड टाइम क्या होगा, जो इसका एंड टाइम था, यहाँ पर देखिए, जो न्यू एंड टाइम क्या होगा, जो ये एंड टाइम था हमारा, ये एंड टाइम था हमारा, ठीक है। मतलब ये जो नया एंड टाइम हमारा 5 आया था जिस पे मीटिंग हमारी ख़त्म हुई थी जस्ट, वो, और प्लस हमें ड्यूरेशन में प्लस कर देना है। इस एंड टाइम में प्लस कर क्या कर देना है, ड्यूरेशन, वही हमारा क्या होगा, एंड टाइम होगा, ठीक है। तो जो न्यू एंड टाइम होगा भैया हमारा क्या होगा, एंड टाइम, जहाँ पर ये अभी जिस मीटिंग ने रूम को फ्री किया है उसका एंड टाइम, प्लस हमें ड्यूरेशन को स्टोर कर देना है, ड्यूरेशन ऑफ दैट मीटिंग, ओके। एंड इसको मुझे फिर बाद में फिर से हमें स्टोर कर देना है यूज रूम में, क्योंकि अभी ये रूम मैंने फिर से यूज़ कर लिया। तो यूज रूम डॉट ऐड न्यू एंड पेयर में स्टोर करना है मैंने को, न्यू एंड टाइम कॉमा रूम, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, हमने इस रूम को यूज़ कर लिया है तो हमको इसको रूम यूज्ड काउंट को भी इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। बस इतना करना था इसमें हमें, ठीक है। अब मैं इसको एक बार चला के दिखाती हूँ। हाँ, इसको आगे ये भी कर लेना है, निकाल लेना है ना, जो हमारा रूम था ना उसको निकाल लेना है, ठीक है। करेंट हमने जो रूम यूज्ड काउंट है उसको मैंने मिनिमम वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर जो रूम यूज्ड काउंट ऑफ आई है वो अगर बड़ा है, जो हमारी रूम यूज्ड काउंट करेंट रूम यूज्ड काउंट है, तो हम क्या करेंगे, करेंट रूम यूज्ड काउंट को इससे रिप्लेस कर देंगे और जो रूम है उसको असाइन कर देंगे हमारी रूम नंबर, ठीक है। तो मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, कहाँ गलती है भाई, 35 नंबर 35, ओके। यहाँ पर मुझे न्यू एंड, एक्चुअली मैंने जो पेयर है मैंने एरे में स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। एंड टाइम इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, ओके यस, एंड टाइम मैंने पहले डिफाइन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे एंड कर दूँगी, एंड हियर इज़ ऑल्सो एंड, ठीक है। करते हैं, यहाँ पर ये चल तो गया, लेकिन अभी ये यहाँ पर एक टेस्ट केस में फटेगा। मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, सबमिट करके दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेरा भी फंसा था, इसीलिए मुझे पता है ये क्यों फंसा है, मैं बताती हूँ आपको, समझाते हैं, ठीक है। तो मैंने यही वाला टेस्ट केस यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। मैंने कहाँ गलती कर दी थी, मैंने यार सब कुछ सही किया था, ठीक है, लेकिन मैंने एक जगह ये गलती कर दी कि अगर जो हमारा रूम है वो पहले ही फ्री हो गया, कोई मीटिंग आई नहीं लेकिन रूम हमारा फ्री हो गया है, तो वो भी तो मुझे चेक करना है, वो मुझे पहले ही चेक करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने ये 0 और 10 मीटिंग है, यहाँ पर n=2 है, 2 रूम है हमारे पास, 0 रूम है और ये फर्स्ट रूम है, ठीक है हमारे पास। और मैंने क्या किया यहाँ पर, जो 0th रूम है, सॉरी जो फर्स्ट मीटिंग है वो मैंने 0th रूम में असाइन कर दी, यहाँ पर असाइन कर दी, कौन सी, 0,10 मैंने यहाँ पे असाइन कर दी, ठीक है। 0,10 है यहाँ पर असाइन हो गई है, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ी, फिर मुझे 1,2 पे आई, ठीक है। रूम एम्प्टी है तो मैंने 1,2 यहाँ पर असाइन कर दिया। अब दोनों रूम हमारे क्या हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए, ठीक है, ऑक्यूपाइड हो गए दोनों रूम। अब हम आगे बढ़ेंगे 12,14 पे। सो when we reach on the 12,14, so before 12,14, before this meeting at time t equals to 12, so ये मीटिंग टाइम t equals to 10 पे स्टार्ट होगी। तो उससे पहले इस टाइम t equals to 10 से पहले, 12 से पहले हमारी ये मीटिंग जो है 1,2 ये तो रूम को छोड़ देगी एट टाइम t equals to 2 पे, एट टाइम t equals to 2 पे। ये देखो, ये अभी हमारे जो टाइम t equals to 0 था उस पर हमने असाइन कर दी, फिर हमारा 1 हुआ टाइम, उस पर भी हमने मीटिंग असाइन कर दी, फिर जब 2 हुआ टाइम, एट टाइम 2 equals to 2 पे, एट टाइम t equals to 2 पर
ये जो 1,2 मीटिंग है ये रूम को छोड़ देगी भाई, इसका कंप्लीट हो गया, इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 1 मिनट था ना, इसने कंप्लीट कर लिया भाई, ये मीटिंग को छोड़ दे, ये रूम को छोड़ देगी, ये फ्री हो जाएगा ये रूम, ठीक है, ये रूम हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जब ये रूम हमारा फ्री हो गया, ठीक है, फिर उससे पहले जब हमारा इस 12 से पहले हमारा t=10 टाइम आएगा ना, t=10, तो सपोज इस 2 के बाद हम आगे बढ़ गए डायरेक्ट 10 पे आ गए, ठीक है, मैं 10 पे आ गई, मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो जब 10 आएगा तब ये मीटिंग है ना, ये मीटिंग भी छोड़ देगी इस रूम को, क्यों, ये कंप्लीट हो जाएगा ना, 0,10 सिर्फ टाइम t=10 तक ही चलना था, और टाइम t=10 पे ये छोड़ देगी रूम को, ठीक है। अब ये भी रूम एम्प्टी हो गया, ठीक है, दोनों रूम हमारे एम्प्टी हो गए ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे टाइम t=12,14 पर, ठीक है। तो लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने कोड किया है, मैंने ये चेक ही नहीं किया, मैंने यहाँ पे आई, फिर मैं यहाँ पे आई, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गई टाइम t=12 पे। मैं जैसे 12 पे आई, मैंने देखा अच्छा 12, फिर मैं देखूँगी कौन सा जो अर्लीस्ट ख़त्म हो रहा है, मैं देखूँगी अच्छा 1,2 ख़त्म हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं 1,2 मीटिंग जल्दी ख़त्म हो रही, तो यानी 1 फ्री हो जाएगा, तो मैं क्या कर दूँगी, मैं 1 को असाइन कर दूँगी। तो पहले मैंने असाइन किया था 0 को मीटिंग, 0 के पास 1 थी, तो 1 0 को असाइन हो गई, एंड 1 को भी एक मीटिंग मिल जाएगी 1, ठीक है, फर्स्ट रूम को भी 1 मिल जाएगी, सेकंड मीटिंग में 1 मिल जाएगी। लेकिन जब ये मीटिंग फ्री कर देगी रूम को 1,2 को, मतलब मेरे कोड के हिसाब से मैंने क्या एक्सेप्ट किया था, अगर जब 12,14 को कोई रूम मिला ही नहीं फ्री, मतलब 0,1 मैंने अपडेट ही नहीं किया था ना मैंने फ्री रूम को, तो उसको मिल जाएगा, उसको क्या मिल जाएगा, उसको फर्स्ट रूम मिल जाएगा, इसके काउंट फिर 2 हो जाएगा, मेरा जो फर्स्ट रूम है उसका काउंट 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ी 13,14, फिर मैं इसको अपडेट कर दूँगी, इसका मैं क्या करूँगी, इसका t=2 था ना, t=2 एंड टाइम t=2 मैंने ले लिया, ठीक है, एंड ड्यूरेशन इसकी 2 है, तो 2=4 पे, यानी 4 पर ये एंड होगा, यानी 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और रूम हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एट टाइम t=4 पर, तो टाइम t=4 पर ये मैं छोड़ देगी, ठीक है, टाइम t=4 पर ये हमारा छोड़ देगी रूम को, 1 रूम को छोड़ देगी, तो हमारा फ्री अकाउंट 3 हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, मैंने गलत किया है, क्यों गलत किया है, क्योंकि भाई ये जो मीटिंग है वो टाइम t=12 पे आएगी, और भाई तुम टाइम t=2 पे इसको ले आ रहे हो, फिर उसको तुम टाइम t=4 पे तुमने इसको कंप्लीट भी करा दिया, और फिर बाद में तुमने मेरी रिकॉर्डिंग अचानक से बंद हो गई थी, तो मुझे फिर से करना पड़ रहा है रिकॉर्ड, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, तो मैं फिर से आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर थी ना, कि मैं ये बोल रही थी, जैसे 1 मिनट, हाँ, ये जब यहाँ पर 12 था, मतलब 12 पे आया था मैंने, लेकिन मैंने 12 से पहले एट टाइम t=2 पर ये फ्री हो गया था, मतलब अर्लीस्ट टाइम मेरे कोड के हिसाब से अर्लीस्ट टाइम t=2 पे ये मिल गया था मुझे, ठीक है, खाली हो गया था फर्स्ट रूम, तो मैंने फर्स्ट रूम को ये 12,14 असाइन कर दिया था मीटिंग है, और इसका स्टार्टिंग टाइम मैंने t=2 कर दिया था, और एंड टाइम मेरा 2=2 हो जाएगा, क्योंकि इसका ड्यूरेशन 2 है, तो ये हो जाएगा मेरा, तो मैं फर्स्ट रूम को असाइन कर दूँगी, ठीक है, एंड ड्यूरेशन 2 तक ही चलेगा, एंड t=4 तक की t=4 तक ये फ्री हो जाएगा, ये वाला रूम हमारा फर्स्ट रूम। अब फिर से मैं 13,15 को असाइन कर दूँगी, है ना, जो मुझे अर्लीस्ट रूम मिल जाएगा वो उसको मैं असाइन करते जाऊँगी। तो यानी जो फर्स्ट रूम है उसको 3 बार यूज़ किया मैंने, एंड जो सेकेंड रूम है, जो सॉरी 0th रूम है, उसको मैंने सिर्फ 1 बार यूज़ किया। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये जो टाइम t=12 वाली मीटिंग है, इसका स्टार्ट टाइम देखो ना 12 पे है, ये 12 पे स्टार्ट होगी भाई, तुमने उससे पहले ही उसको असाइन कर दिया मीटिंग निकाल के, नहीं, जब उसका टाइम आए तभी उसको असाइन करना है, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है, इसी वजह से वो टेस्ट केस यहाँ पर फेल हुआ है। तो मुझे यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा इस मिन हीप वाले प्रायोरिटी के ऊपर, एक लूप मुझे लगाना पड़ेगा। क्या लूप में लगाना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, जैसे मैं इस वाले मीटिंग पे आई, जैसे इस वाले मीटिंग पे आई, तो इसका स्टार्ट टाइम जो है 12 है, ठीक है, इससे छोटे या इससे बराबर, इसके छोटे या इसके बराबर जो एंड टाइम है, जो भी इसका छोटा, इससे छोटे या इसके बराबर जो भी एंड टाइम है, उनको हम एक फ्री टाइम जो हमारा मिन हीप था उसमें हम स्टोर करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे इस स्टार्ट टाइम तक की आते आते सारे रूम फ्री हो जाएंगे, वो रूम ये सारी मीटिंग फ्री कर देंगे उस रूम को। तो मैं एक लूप चलाऊँगी, वहाँ पर पहले चेक कर लूँगी कि जो भी एंड टाइम अगर इस मेरे करेंट स्टार्ट टाइम से छोटे हैं या फिर इक्वल हैं,
उन सब के रूम को हम फ्री रूम में एलोकेट कर देंगे। क्यों क्या कर देंगे? क्योंकि ये टाइम, ये जो मीटिंग्स हैं वो इस टाइम तक की आते आते फ्री कर देंगी रूम को, तो हम फ्री कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब इस 12 पे आएंगे तो ये हमारा 0 और 1 को दोनों फ्री कर देंगे रूम को, इस मीटिंग को, ये मीटिंग दोनों रूम को फ्री कर देंगी। तो हम जो 12,14 है वो किसको साइन कर देंगे? वो साइन करेंगे हम 0 वाले रूम को। ठीक है, तो 0 वाले रूम का काउंट 2 हो जाएगा, इसका हमारा 1 ही है अभी। ठीक है, हम फिर 13,15 पे आएंगे, तो ये 12,14 तक की चलेगा एंड t इक्वल्स टू 13 पर तो सिर्फ हमारा फर्स्ट रूम हमारा एम्प्टी होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट रूम को फिर असाइन कर देंगे ये 13,15 को, तो इसका भी काउंट 2 हो जाएगा। फिर दोनों का काउंट 2 है, तो हमारा जो लोवेस्ट रूम है वो किसका कितना है? 0, तो 0 रिटर्न कर देंगे, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा सोचना था, मतलब इस चीज़ पे कि हमें जो मीटिंग्स पहले ही हमारी फ्री कर दे रही है रूम को, उनको पहले हमें असाइन कर देना है फ्री रूम में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या चेक लगाना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे एक चेक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वाइल लूप यूज़ करके मुझे क्या चेक करना है? पहले तो मुझे इसका ये जो खाली नहीं होना चाहिए, कि हमारा जो यूज्ड रूम है ना, यूज्ड रूम टाइम है ना जो मैंने ये बनाई है, वो हमारी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, डॉट इज़ एम्प्टी, नॉट ऑफ एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, एंड में क्या चेक करना है? जो यूज्ड रूम है डॉट पीक, जो उसकी पीक पे वैल्यू है। ओके, जो इसकी पीक पे वैल्यू है, पीक पे वैल्यू कौन सी होगी? पीक पे वैल्यू हम कैसे चेक करेंगे? पीक पे वैल्यू, और जो मैंने इसमें पेयर किस में स्टोर किए हैं? एरे में स्टोर किए हैं, तो इसका 0th इंडेक्स में हमारा एंड टाइम होगा ना। अगर वो लेस देन और इक्वल टू किसके हो? अगर वो लेस देन और इक्वल टू जो हमारा करंट स्टार्ट टाइम है, ठीक है, जो हमारी करंट मीटिंग का स्टार्ट टाइम है, उसके अगर लेसर देन और इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे? उस मीटिंग के रूम को निकाल लेंगे। सॉरी, इस जो मीटिंग जो अभी करंट मीटिंग इसमें जो है, इस यूज वाले रूम में जो इसका एंड टाइम है, इस एंड टाइम के मीटिंग के रूम को हम निकाल लेंगे और इसको फ्री रूम में असाइन कर देंगे। तो क्या करेंगे? एंड रूम इक्वल्स टू ये जो यूज टाइम है इसकी जो पॉप कर लेंगे इसकी जो अर्लीस्ट मीटिंग है उसका एंड टाइम, मतलब जो अर्लीस्ट मीटिंग है, जो रूम उसको असाइन है, उस रूम को हम पॉल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? पॉप क्या, कौन से इंडेक्स पे रूम है? हमारा फर्स्ट रूम इंडेक्स पे। मैंने पेयर स्टोर किया ना 0,1 पे, मतलब एरे ऑफ 2 का मैंने पेयर स्टोर किया ना, तो वही मैंने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, और मैं क्या कर दूँगी? फ्री रूम में असाइन कर दूँगी इसको, क्योंकि ये फ्री हो गया ना रूम। ठीक है, तो फ्री रूम्स डॉट ऐड दिस रूम। ठीक है, बस मुझे इतना यहाँ पर मुझे एक करेक्शन करना था बस। ठीक है, तो अब ये मेरा चल जाएगा टेस्ट केस। ठीक है, ठीक है, रन हो गया। अब मैं इसको सबमिट करके दिखाती हूँ। सबमिट हो जाएगा। ओके, सबमिट हो जाओ। ठीक है, सबमिट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, मेरा भी थोड़ा सा बढ़िया सा मतलब माइंड लग गया, दिमाग चल गया इसमें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।